Very good morning, students of class 9. In the previous class, we have came across with the very important topic of your political science, chapter number 3, that is electoral politics. In today's presentation, we are going to have a very important topic to be discussed. That is, why do we need elections in a democratic country like in India? It means the essence of the elections or the importance of elections in democracy. Fine. Before I would like to go for the further studies of points to be furthest point to be discussed in elections, I just want to discuss a case study. The case study is called as the state assembly elections in Haryana in the period of 1987. चिल्ड्रन, आप कहेंगे मैडम बहुत पुराना ये केस स्टडी है, बट येस बेटा, ये केस स्टडी इतनी इम्पॉर्टेंट है. So let's we discuss on the various issues regarding the case study of your Haryana in 1987. The elections which are held at a state level is what we called it as the state assembly elections. Fine, children. So let's we talk on this particular section. Students, the elections in Haryana were held in the period of 1987. Fine. Previously, the Congress government led by Bansi Lal was ruled in the state. फाइन. जो इलेक्शन से पहले स्टेट में जो पार्टी रूल कर रही थी या जो गवर्नमेंट थी वो कौन थी? कॉल्ड एज कांग्रेस गवर्नमेंट, जिन्होंने 1982 से ही वाज यू कैन से ही रूल्ड ओवर द स्टेट. स्टेट का नाम क्या? हरियाणा. जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपके जो करंट गवर्नमेंट बीजेपी की है, लेड बाय योगी जी, उनसे पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी, है ना, समाजवादी पार्टी. तो बेटा हर टेन्योर यानी हर 5 इयर्स के बाद जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती है. तो जो ये इलेक्शंस 1987 में था, उससे पहले कांग्रेस हैज़ रूल्ड ओवर द स्टेट. फाइन. बट द पीपल ऑफ a state was very dissatisfied and unhappy, so they wanted a change in the state. क्योंकि changes occurred और changes के लिए हमारे सिटीजन्स यानी हमारे लोगों के हाथ में सबसे अच्छा मैकेनिज़्म क्या होता है? दैट इज़ द वोटिंग राइट. और यही वोटिंग राइट अल्टीमेटली पॉलिटिकल इक्वलिटी इन्हांस करता है अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, जिसको हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं. सो इन अगेंस्ट ऑफ कांग्रेस, चौधरी देवीलाल, at the time he was in opposition, and he led a very important movement called as Nyay. It was called as Nyay for Justice, यानी न्याय युद्ध. बेटा the version that is called as your that is it is called as न्याय युद्ध. ठीक है ना? इट इज़ कॉल्ड एज न्याय युद्ध. तो उनको क्या बोला गया? दैट इज़ द स्ट्रगल फॉर जस्टिस. सो इट इज़ न्याय बुश नहीं है, यहाँ पे न्याय युद्ध है. एंड ही फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, एंड द नेम ऑफ द न्यू पार्टी वॉज कॉल्ड एज लोक दल. इज दैट क्लियर बेटा? देन
comes to, then if we are talking about along with the other parties or you can say alliances, जिसको हम लोग गठजोड़ बोलते हैं, he wanted to contest elections against Congress, है ना, which was earlier the party, important party, national party भी है. तो वो under Bansi Lal, he was go through with the important elections at that time. तो उनके अगेंस्ट में चौधरी देवीलाल, he wanted to contest elections against Congress. So in the party election manifesto, he assured the people. इलेक्शन मैनिफेस्टो मीन्स जिसको हम लोग कहते हैं एजेंडाज, ठीक है, जो चुनावी घोषणाएं होती, घोषणा पत्र. तो उस घोषणा पत्र में चौधरी देवीलाल जी का कहना था कि अगर यदि जनता उन्हें चुनती है तो वो, अगर जनता उन्हें चुनती है और वो सरकार बनाते हैं तो वो जो लोन्स हैं, दैट लोन्स वर वेव्ड ऑफ, उस लोन्स को वो ख़त्म कर देंगे, स्पेशली द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड द स्मॉल businessman. Fine, children. So in the election campaign, the people, he promised the people to waive the loans, especially of the farmers and small businessman, if he will win the elections. That was what we called it as the promises made by the particular party. The party name was called as Lok Dal, and who was the leader at that time? The leader was देवीलाल. और उन्होंने एक तरह से पार्टी प्रॉमिस यानी पार्टी एजेंडा था, चुनावी घोषणा की जाती है कि हम कौन कौन से प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाएंगे यदि हमारी सरकार चुनी जाएगी तो. Children, the people wanted change because they were very unhappy with Congress, and thus they elected the Devilal as the chief minister because the people were attracted by his agenda. वो एजेंडा से खुश थे. तो जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस शोड अ वेरी ह्यूज सपोर्ट टू लोक दल. चिल्ड्रन, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला लोक दल को, और लोक दल ने 90 सीट्स जो स्टेट असेंबली की होती हैं उसमें से 76 सीट्स को लोक दल ने जीत लिया. मतलब मेजॉरिटी जो थी वो लोक दल और उनके अलाइंसेस और लोक दल ने तकरीबन 76 सीट्स आउट ऑफ 90 सीट्स इन स्टेट असेंबली, और कांग्रेस को नियरली 5 सीट्स ही मिल पाई एट दैट टाइम. सोचो, वो कांग्रेस जो कि रनिंग गवर्नमेंट थी, सो द कांग्रेस मैनेज टू विन ओनली 5 सीट्स. स्टूडेंट्स, जब रिजल्ट आया तो उस वक्त के सिटिंग चीफ मिनिस्टर मिस्टर बंसीलाल हैज़ रिजाइंड. बंसीलाल जी को उनका रेजिग्नेशन ले लिया गया बेटा, और देवीलाल हैज़ चूजन बाय द न्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसको हम लोग स्टेट असेंबली के MLAs कहते हैं बेटा. तो MLAs यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दे हैव चूजन, और MP हम लोग किसे कहते हैं? मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. सो देवीलाल एज देयर लीडर, and at that time the governor of the state, SM Hussain Barni, he invited Mr. Devilal as a new chief minister and wanted him to form a government. क्यों बेटा? क्योंकि पीपल्स वर्डिक्ट किसके लिए थी? पीपल्स वर्डिक्ट थी, जो मेजॉरिटी थी वो किसके लिए थी? मेजॉरिटी लोक दल के लिए थी. मेजॉरिटी किसके लिए थी? मेजॉरिटी देवीलाल जी के लिए थी, जो उनकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम से अट्रैक्ट होके लोगों ने उनको वोट्स दिए, क्योंकि यही तो अल्टीमेटली एक राइट है, पॉलिटिकल राइट है, इररिस्पेक्टिव टू एनी इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल
हम कह सकते हैं कल्चर बैरियर्स, है ना। इन सबसे बड़ा जो हमारी इक्वलिटी है वो शो किस में होती है बेटा, वो शो होती है हमारी पॉलिटिकल इक्वलिटी। His government, it means Devilas government issued गवर्नमेंट ऑर्डर, उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर किया टू वेव द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, लेबर्स, businessman, etc. For further years, his party ruled over the state, and children, he fulfilled his promises जो उन्होंने प्रॉमिस इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में किया था उसको। जैसे कि हर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी इलेक्शन लड़ने से पहले अपने घोषणा पत्र यानी इलेक्शंस मैनिफेस्टो देती है, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को डिस्कस करती है। बट चिल्ड्रन, again, he was not fulfilling the requirements or expectations of the people. So in the next election, which were held in 1991, he didn't get any sort of support from the side of the people. उन्होंने पीपल का उनको सपोर्ट नहीं मिला, और अल्टीमेटली ही लॉस्ट द बैटल ऑफ फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, एंड द कांग्रेस अगेन फॉर्म द गवर्नमेंट इन 1991. सो अगर हम इस केस स्टडी के को कंक्लूड करें, तो इस केस स्टडी का जो हमारे पॉइंट्स हैं, दैट पॉइंट्स हैज़ टू बी मेमोराइज्ड। लाइक इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज आए। फर्स्ट, इलेक्शंस। बेटा ये इलेक्शंस जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आप लोगों ने देखा 1982 से फिर 1982 से 1987 से फिर 1991, यानी अप्रॉक्सीमेटली 5 years का गैप। इट मीन्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नीडेड, एंड इट इज़ अ ग्रेट मैकेनिज़्म टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्शंस होगा। इलेक्शंस में जो मेजॉरिटी पार्टी है, जिसको मेजॉरिटी पार्टी का मतलब जिसको मैक्सिमम वोट्स मिले हैं, वो पार्टी क्या फॉर्म करेगी, गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का एसेंस यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रेजेंस, फाइन, इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। इसमें हमने 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ देखी, वन इज़ कांग्रेस एंड अनदर वन इज़ लोकदल। देन थर्ड, पीपल सपोर्ट्स एंड देयर एक्सपेक्टेशंस एंड देयर वर्डिक्ट। पीपल का सपोर्ट, क्योंकि पीपल जो है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री की पीपल है, द पीपल इज़ द किंग ऑफ द कंट्री, किंग ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पीपल वर्डिक्स प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बेटा। अगर पीपल के एक्सपेक्टेशंस को कोई गवर्नमेंट फुलफ़िल करेगी तो ऑफ कोर्स पीपल का सपोर्ट उनको मिलेगा। अगर किसी तरह से एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं कर पाए, या कहीं भी उनको ऐसा लगा कि नहीं गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा या करप्टेड हो रही है गवर्नमेंट, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट को नहीं चुनते हैं। और यही हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब 1982 में कांग्रेस, फिर 1987 में लोकदल, फिर अगेन जब 1991 का इलेक्शन आया, तो जो जनता थी हरियाणा को, उन्होंने दोबारा से कांग्रेस को चुना बेटा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इलेक्शंस मैनिफेस्टो। और इलेक्शंस मैनिफेस्टो एक ऐसा आधार, एक बेस होता है जिस पर हम लोग चुनाव को लड़ते हैं। यानी अगर 4 पार्टियां हैं और 4 पार्टियों का एक इलेक्शन मैनिफेस्टो है, तो जो जनता है उसको क्या चीज़ नया मिलेगा, वो यही कहेगी कि 4 पार्टीज़ आर देयर एंड द इलेक्शन मैनिफेस्टो सबके, उसमें तो एक ही बात है, बेरोज़गारी हटाओ, गरीबी हटाओ, है ना, क्या नया है। तो जनता नए को ढूंढती, यानी चेंजेस चाहती है, वो न्यू थिंग्स टू बी एडेड इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो इलेक्शंस मैनिफेस्टो में जब नई चीज़ें आती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ पे हो या नेशनल बाउंड्रीज़ पे हो, जब उन्हें ये लगता है कि नहीं हम लोग अपने एक ऐसे सरकार के हाथों में सुरक्षित हैं, तो जो कि 5 साल, तो वो 5 साल के लिए उस सरकार को चुन लेती है। और वो सिर्फ 5 साल के लिए ही नहीं बेटा, आगामी आने वाले चुनावों में भी वो उस सरकार को फुल सपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा कि वाई द इलेक्शंस इज़ इम्पॉर्टेंट।
बेटा अभी इस टॉपिक के फर्दर सबसेक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. So till then kindly revise and watch the videos very carefully. Fine student, till then goodbye.